Today we will start with the constants. In previous lecture we studied keywords and identifiers. Now we will start with the constants. Now constant is a C referred constant in C that are referred to the fixed values that does not change during the execution of the program. It just means that if अगर आपका program अगर execute हो रहा है and within that execution if the value is remain unchanged, that particular case or that particular C token type is called as a constant. So the C supports the several types of a constant as shown in the figure. अभी फिलहाल तो ये फिगर देख के आपको उसमें एग्जैक्ट जस्टिफाई नहीं होता है कुछ चीज़ें, बट फ्यू थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो दैट इज न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, right? Just the numbers which you used, that are the numeric constants. Character constants means that few alphabets are there and that will be treated as a constant. Their values will not be, their values means if you write the character A, we will write the A through the keyboard, but whether this A will be understood by the system, certainly not. System only understand binary version of a, right? A binary version of a, it means that 0101 का कोई फॉर्मेट रहेगा, बट यूनिवर्सली जो कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं उसको एक डिफाइन किया गया है आस्की वैल्यू से. एनीवन नो दैट आस्की आस्की वैल्यू? एनीवन heard about it? Exactly, exactly. So when they design C, they used some keywords. जैसे मैंने अभी बताया सबको कि वे keywords उसमें उन्होंने fix करके रखे थे. So these are the few words which है having a particular meaning. और उनका जो अगर meaning है खुद का, so with that particular meaning we can use that particular keywords. ये एक fix है. उसी तरीके से when we use the keyboards, there are several keys. Out of that 256 that combinations they set a number. ठीक है, जैसे अगर हम ASCII टेबल अगर देखते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मोस्टली जो इन्वेंशंस हुए हैं कंप्यूटर रिलेटेड, दैट वाज फ्रॉम अ यूरोप साइड एंड अमेरिकन साइड, राइट? सो दीज आर द few values. Is it visible? ASCII table. Okay. So the decimal values, then character values, and here we start from a capital A from 65. हमको बहुत ज़्यादा याद में नहीं रखना है, सिर्फ उसकी स्टार्टिंग याद रखनी है अल्फ़ाबेट्स की, राइट? 65 से कैपिटल ए स्टार्ट होता है और 97 से स्मॉल ए स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन इट विल एंड टू द 90. कैपिटल जेड 90 पे होता है एंड, और 122 पे स्मॉल जेड एंड होता है. और उसके बाद बहुत सारे जो सिम्बॉल्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स है, सेमी कोलन है, 1 2 3 नंबर्स भी है, 0 0 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं, these up to 9, these are indicating with the 48 to 57, then equal to, greater than, question mark, plus, multiplication, minus, these are all indicated with the help of this ASCII standard values, right? So with that values what we get, we just have to give, once we enter the particular character or the number, it will generate their ASCII value, means the compiler or the system generates their ASCII value, and with that ASCII value which is given to the system, and system will convert that ASCII value into the binary format. जैसे स्मॉल ए की हमने देखी थी यहाँ पे ASCII वैल्यू, दैट विल बी द 97. तो 97 का वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा. बाद में कैपिटल ए अगर है तो 65, दैट विल कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्म, राइट? सो
When we are talking about the numeric constants, these are divided into the two types, integer constants and real constants, whereas the character constants are single character constants and the string constants. Set of a characters is nothing but the string. हम string किसको बोलते हैं? Set of a characters. If you're talking about the your initial name of a initial, that means H and Watan. So H stands for what? H is a single character, right? Whereas my complete name HEMANT, that will stand for a string, because multiple characters are there and that will form a particular string. So when we're talking about the constant, two types are there: numeric, character. Numeric is divided into integer and real. Character is divided into single character and multiple character also. So multiple character we are not saying, but we just say that it is a string. So in case of a numeric constant, first type is integer constant, that refers to the sequence of a digits. There are the three types of integers, that are decimal integer, octal integer and hexadecimal integer, right? अब इस sequence of a digit means एक सिंगल नंबर अगर रहता है तो उसको भी आप इंटीजर कांस्टेंट ही बोलते हैं, बट उसका अगर सीक्वेंस लेते हैं जस्ट लाइक दैट 123, देन 3 माइनस 321 और 6543, और इवन इफ योर पिन कोड 44460760546002, whatever that pin code is also your integer constant, right? But when we are talking about the integer constant, it is again divided into the three types. That is what integer decimal, then octal, and then hexadecimal. Now that numbers we know, that decimal numbers we know, hexadecimal numbers also we know, and octal also we know it. We'll see it that decimal integer consists of a set of digits 0 through 9. डेसिमल में 0 to 9 ही रहते हैं, क्योंकि उसके आगे जो है that are nothing but the combination of a 0 and 9, preceded by an optional values, means either it is a negative or a positive sign. It is valid in case of a decimal number system. So the valid examples are the 123 minus 321, or even if 0 is also used in that case. Then 6,54,321, then plus 78. जनरली हम ऐसे लिखते नहीं है plus 78, अगर 78 ही लिखा है it means that it is a positive value. Then in case of a digital integer, embedded spaces, commas and non-digit characters. Embedded spaces means what? दो नंबर के बीच में एक आपने स्पेस दी है, उसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं जनरली, बट इट इज ट्रीटेड एज अ सिंपल स्पेस. देन कॉमास, जैसे हम चेक के ऊपर अमाउंट लिखते हैं, या फिर जनरली हमको एक प्रैक्टिस रहती है अमाउंट लिखते टाइम पे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, वहाँ पे हम जनरली कॉमा वगैरह पुट करते हैं. बट इन केस ऑफ कंप्यूटर it is not supposed to be accepted. Non-digit characters are not permitted between the digits. These are the some examples, right? And these are the illegal number, that अगर नंबर के बीच में कॉमा या फिर स्पेस अगर है, या फिर आपने कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है डॉलर, बाद में रुपीज़ का वगैरह, so that will not be considered as a one particular decimal integer constant, right? हाँ, yes. Actually, when we are using online banking or net banking, it completely depends on the one they design. क्योंकि जब भी आप उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम जो भी एक्सेप्ट करते हो आप डेटा, उसको अगर आप स्पेसिफाई करते हो, राइट, कंपाइलर उसको स्पेसिफाई करता है सी लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज में. जैसे कोडिंग लिखा है हमने, कोडिंग में अगर हम बोलते हैं कि भाई कॉमास आर अलाउड, क्योंकि वो सिम्बॉल्स में आएगा ना, कॉमा का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा यहाँ पे उन्होंने इलीगल क्यों बोला है वो मैं बताता हूँ, बट कॉमा का रिप्रेजेंटेशन होता है 44.
ठीक है। तो नंबर दिया जाएगा, डेसिमल नंबर दिया जाएगा, जैसे हमने बोला है कि 20,000 रुपये, ठीक है। तो इसके बीच में अगर कॉमा आ गया, ठीक है, तो 20 को तो वो एज इट इज़ कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर देगा, तो कॉमा जो है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सिस्टम जो है, वो सिस्टम जिसने भी बनाई है, यानी सी लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर सिस्टम नहीं, बैंकिंग के, ऑनलाइन बैंकिंग का जो भी पोर्टल है, जो जिसने भी बनाया है, उसके अगर कोडिंग में वो प्रिफरेबली इस वैल्यू को एक्सेस करने दे रहा है, ठीक है, देन इट विल बी एक्सेप्टेड, बिकॉज वी हैव टू मेंशन इट। जैसे हम डी डी एम एम वाई वाई का फॉर्मेट लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो बहुत बार ऐसा भी रहता है कि वाई 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 डी डी एम एम, उल्टा भी रहता है। या फिर डेट्स, ये जो मेरी डेट आपको दिख रही होगी 26 मार्च, तो यहाँ पे कैसा फॉर्मेट है, नीचे 26 मार्च 21 है, और अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मार्च 26 2021 बताता है, करेक्ट। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा उस हिसाब से वो एक्सेस करेगा, बट मोस्टली कॉमास आर नॉट अलाउड इन दैट पर्टिकुलर डेसिमल कांस्टेंट नंबर, राइट। कॉमास अलाउड नहीं रहते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं ना हमारे, या फिर वो एक लाइन यूज़ करते हैं ना हम ऐसे, ये ऐसा, ये है ना 20,000, इज इट विजिबल, एक लाइन ऐसे स्लैश और उसके बाद डैश, तो जनरली चेक के ऊपर या फिर कहीं पे भी अमाउंट लिखने के टाइम पे हम ऐसे यूज़ करते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एडिशनल सिम्बॉल्स हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं, जो भी सिस्टम को उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअल अमाउंट और वो कैरेक्टर, इनका कोई संबंध नहीं है कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। हमारे लिखने के इसमें वो अलग अलग हम लिखते हैं जनरली, ठीक है। कोई ये भी लिखता है इसके आगे ऐसे, या फिर पहले भी लिखता है ऐसे, तो डिपेंड्स। जैसे यहाँ पे डॉलर बताया हुआ है, लाइक आर एस वी आर ऑल्सो राइटिंग, वी कैन ऑल्सो राइट दिस, बट इट इज़ नॉट used generally in case to represent a decimal constant, like, right. Then switching to the octal integers, that octal integer constant consists of any combination of a digits from the set of 0 to 7, that we already know, octal है तो 0 to 7 ही रहेगा, with a leading 0, but यहाँ पे क्या करेगा, हर नंबर जो लीड करेगा that will be start with the 0। जनरली ऑक्टल सीरीज या फिर हेक्साडेसिमल सीरीज हम डे टू डे इसमें यूज़ नहीं करते हैं, we will only use the decimal, and decimal will be converted into the binary one। But if you want to design the some processor or compiler, खुद का अगर कंपाइलर बनाना है, प्रोसेसर बनाना है विद द हेल्प ऑफ, और इन द केस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दैट केस वी कैन यूज द वेराइटी ऑफ नंबर सिस्टम, मीन्स हेक्साडेसिमल यूज़ कर सकते हैं, ऑक्टल भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी तो रहेगी, और डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, so that made possible। So because of that, the some examples of octal integer constants are 037, 0 तो रहेगा उसमें, 0 435, 055 1, right। Then switching towards the hexadecimal integer constants, a sequence of a digit preceded by 0x or a 0 capital X, जब भी कैरेक्टर आ गया नंबर के साथ, देन वी रियलाइज दैट दिस नंबर इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, और कैरेक्टर भी कौन से आएंगे, ए से लेके तो एफ तक, ठीक। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ हेक्साडेसिमल इंटीजर, दे मे ऑल्सो इंक्लूड द अल्फाबेट्स डेफिनेटली ए टू एफ और अ थ्रू एफ, ठीक है, ए थ्रू एफ और अ थ्रू एफ, मीन्स इट इज अ कैपिटल वन एंड इट इज अ स्मॉल वन। अब हमारे केस में हम जब भी लिखते हैं कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा पहले नेम का लेटर अगर हमने कैपिटल लिखा इट्स ओके, स्मॉल लिखा तो भी ओके, नो प्रॉब्लम। बट कंप्यूटर की जो आज की वैल्यू है वो क्या बोलती है, कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंट, स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट। अब अगर उसके आज की वैल्यू ही अलग है तो उसको रिकोगनाइज भी अलग तरीके से ही करेगा, राइट। उसका जो बाइनरी कन्वर्जन निकलेगा दैट विल बी द डिफरेंट। So it is through
capital A to capital F, or it is through small f. Then the letter A through F represents the number 10 through 50, यानी 9 तक तो ओके है, 10th जब भी रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको A लिखते हैं हेक्साडेसिमल. few examples are there: 0x2, 0x9f, 0xbcd, 0x, right? So 0x, that is a standardized representation, right? जैसे ऑक्टल में 0 से स्टार्ट होता था कोई भी नंबर, यहाँ पे 0x कैपिटल या फिर स्मॉल से स्टार्ट होगा और उसके बाद में जो भी नंबर रहेगा दैट विल बी द हेक्साडेसिमल. so their representation can be done with the help of 0x. बट हम जब लिखते हैं या फिर से हम इसको जब यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस to write it down, but it will treated by the system. If it is a hexadecimal number, then it will started with the 0x. Then we rarely use the octal and hexadecimal number in programming, exactly, because we deal with the decimal, we know the decimal numbers, so we will not uh, use at any point that octal or hexadecimal number. We will use the both binary and decimal only. बाइनरी इसलिए क्योंकि सिस्टम को बाइनरी में लैंग्वेज समझते हैं तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, और डेसिमल जो है वो हमको समझते हैं. देन द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन मशीन डिपेंडेंट is, and it is 32,767 on 16 bit machine. अभी 16 bit machine यानी क्या होता है, बिट यानी क्या होता है, एनीवन बिट हम किसको बोलते हैं, बिट. एग्जैक्ट 0 1, बाइनरी के जो दो दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 0 1, उसको हम बिट बोलते हैं. और कितने बिट का एक बाइट होता है, 8 बिट्स का एक बाइट होता है. निबल याद है, निबल, एनीवन, निबल 32 बिट्स, निबल 32 बिट की तो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, 64 बिट की भी होती है, 32 बिट की भी होती है. निबल क्या होता है, 4 बिट्स, एग्जैक्टली. निबल बिट बाइट निबल. उसके बाद क्या था, किलो बाइट के पहले कुछ भी था ना, नहीं ठीक है, किलो बाइट ही था बात में. 1024 बाइट मीन्स 1 किलो बाइट, करेक्ट, एम आई राइट. 1024 बाइट, दैट इज नथिंग बट द 1 किलो बाइट, बराबर है. देन 1024 किलो बाइट. हाँ, हेलो, okay, 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 kindly mute yourself everyone. So 1024 kilobyte, that is nothing but the 1 megabyte. 1024 megabyte, that will be the gigabyte, GB. 1024 gigabyte, that will be the 1 terabyte. Okay, and so on. Okay. So it is possible that 32,767, that is what a integer value, largest integer value, that will be uh, stored inside the 16-bit machine. And यहाँ पे देखिए 5 डिजिट वैल्यू है, ठीक है, दैट विल बी स्टोर्ड इन 16 बिट. अब 16 का हमने डबल कर दिया 32 बिट, एंड द वैल्यू दैट बिकम्स आई गेस 2 करोड़ और 21 करोड़ नहीं, इट इज ऑलमोस्ट 9 10 डिजिट. कैन एनीवन डिकोड इट, 21 करोड़ 47 लाख और 89, exactly 2 million, right?
बिलियन बिलियन सॉरी 2 बिलियन, राइट, 2 बिलियन, और यहाँ पे पहले था 147 मिलियन. So 2 billion if we consider, 2 billion if you consider, that means that much of integer values that can be stored in 32 bit, और 16 bit के comparison में 32,000 only. So vast difference is there in between these two systems, right, two machines. और इसके आगे अगर हम जाते हैं 64 बिट पे, 128 बिट भी अभी चालू है, उसके ऊपर भी काम चालू है, बट इफ यू कंसिडर द 64 बिट विच वी आर राइट यूजिंग, तो 2 बिलियन का मे बी 10 बिलियन या फिर 20 बिलियन के ऊपर इंटीजर वैल्यूज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ चुकी होगी, राइट. सो 2 बिलियन डेटा कैन बी और इंटीजर वैल्यूज कैन बी stored inside a 32-bit machine. It is also possible to store larger integer constant on these machines by appending qualifiers such as u, l and ul to the constants. अब ये इन्होंने कुछ उसके ट्रिक्स बताए हैं, मैकेनिज्म्स मशीन्स के रिलेटेड, कि अगर उसको स्टोर करना है तो उसको आप लार्जर वैल्यू भी है, और अगर हमारे सिस्टम कैपेबल नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अपेंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, नंबर को, एंड देन यू विल अपेंड विद द हेल्प ऑफ यू, एल एंड यू एल. 3 टाइप्स दिए हैं उन्होंने. so that made possible in case of a hexadecimal number systems, right, or the hexadecimal constants. Then switch from this integer constant to the real constant. Real constants are what? Integer numbers are inadequate to represent quantities that vary continuously. उसमें अगर इंटीजर कांस्टेंट अगर हम यूज़ करते तो उसका नाम है कांस्टेंट, पहली बात तो ये. और वो जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा दैट इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल बी रिमेन एज इट इज़. बट इफ यू वांट टू वैरी दैट पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे अपन 3.14 एज अ पाई की वैल्यू लेते हैं, ग्रेविटेशनल जी जो है उसकी एक वैल्यू लेते हैं आई गेस 9.8, राइट, 9.81 exactly for 2 digit. So 9.81 हम जो वैल्यू लेते हैं, so that we can't say that it is a completely 9, we can't say that it is a completely 10, it lies in between 9 and 10. So that is nothing but the real constant, such as distance, height, temperature, then prices, stock market में जो prices रहती है shares की, so that is nothing but the real constants. These quantities are represented by a numbers containing fractional parts like 17.548. Such numbers are called as a real constants or a floating point constants. तो इसके लिए अलग से एक डेटा टाइप भी है float. Then the further examples are there. यहाँ पे दिए उन्होंने examples, minus 0.75 also the example. Then 215, इसका डेसिमल पॉइंट नीचे चला गया. So 0.083, then plus 0.5, minus 0.75. These all are the examples of a real constant as it is having a fractional part. A real number may also be expressed in exponential और साइंटिफिक नोटेशन. उसमें एक्सपोनेंशियल अगर पार्ट आता है उसके लिए math.h जो ये एक हेडर फाइल है वो हमको यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड फंक्शंस है, मैथमेटिकल फंक्शंस, दैट कैन बी रिटन इन अ stdio.h हेडर फाइल. वो उसमें लिखे हुए हैं कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन. इवन इफ अगर आपको एडिशन चाहिए तो यहाँ पे आपके पास आस्की वैल्यू है एडिशन की, जो कैरेक्टर है एडिशन उसकी आस्की वैल्यू क्या है 43, स्टार्टिंग विद द 42, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन एंड देन डिवीजन, राइट. बोर्ड मास का रूल लगता है इसको, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन. यहाँ पे बोर्ड मास का रूल नहीं लगता है, ठीक है. तो यानी एक्चुअल प्रैक्टिस में हम जब यूज़ करते हैं टू सॉल्व मल्टीपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जिसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है या फिर डिवीजन भी है, तो वहाँ पे हम बोर्ड मास लगाते हैं. बट
कंप्यूटर में उन्होंने क्या किया है, जो भी सिम्बॉल्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेसिमल नंबर अलोकेट करके रख दिया है. दैट डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर once we are giving the positive sign or multiplication sign or any sign, right? But if you want to use the exponential, then if you want to use the logarithmic value, if you want to use the integration derivation, these values, then we have to use the compulsorily math.h, right? These header files are required. Then what they are talking about the scientific notations. So for example, the value of 215.65 may be written as 21565 exponential 2, यानी उसके आगे का जो पार्ट है that will be treated as a exponential और e. कैलकुलेटर में कभी आपने ये देखा है कि आप बहुत बड़े नंबर की अगर कैलकुलेशन करते हो और वो डिजिट उसके स्क्रीन पे नहीं है, यानी ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, स्पेस नहीं है उनके पास, तो एक सिंबल देता है वहाँ पे ई करके. किसी ने करके देखा है? बहुत बड़ा नंबर है, ऑलमोस्ट 15 डिजिट, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 7-8 डिजिट से, तो वो जो आने वाला नंबर रहेगा वो उससे भी बड़ा रहेगा. सो दैट विल नॉट, it is not possible for the calculator or even if your mobile phone also to represent that number on the screen. तो वो उसको क्या कर देता है, एक्सपोनेंशियल में डाल देता है. सो सेम दैट एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज यूज्ड, दैट e2 मींस मल्टीप्लाई बाय द 10 raised to the power 2. ठीक है. द जनरल फॉर्म इज मैंटिसा ई एक्सपोनेंट. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे हो सकता है कि अगर लार्ज नंबर है, लार्ज डिजिट्स है, सीक्वेंस ऑफ डिजिट है, तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू reduce that particular with the exponential value, right? So that made possible in case of only real constant. Then the mantissa is either a real number expressed in decimal notation or an integer. तो मोस्टली डेसिमल नंबर भी रहेगा वो, और आगे जाके उसको फ्लोट भी बताया उन्होंने, तो डेसिमल भी और फ्लोट भी हो सकता है. द एक्सपोनेंट is an integer number with an optional plus or minus sign. So while writing the answer of this question, you just have to take the few points, not the all. But हमको पढ़ते टाइम पे सभी के सभी पढ़ने हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दिस इज अ रियल कांस्टेंट. तो रियल कांस्टेंट का आपने इतना भी लिखा कि रियल कांस्टेंट इज व्हाट एग्जैक्टली, इट इज लाइज अंडर द डिस्टेंस, हाइट, टेम्परेचर, उसका एग्जांपल एंड दिस. So it is enough, right? But if it is used in the your program, then we should must know that what is that mantissa e exponent, right? बहुत बार ऐसा होता है कि एक आधा प्रोग्राम ही ऐसे आ जाता है कि जिसमें उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना है. इन दैट केस वी डोंट नो दैट mantissa e exponent. For that we will just completely learn that particular part, but while you are writing, don't bother about that much of you have to write. You just have to write as per the questions and their marks. If the question is asked for the 4 marks, 5 marks, 7 marks, then we have to write it like this. If it is asked for the 14 marks, then we have to write completely. And if it is asked for objective type question, then there is no need. You just have to select the answer A, B, C, D, anyone. That's it. Then the exponent of an integer number, the exponent of an integer number with an optional sign plus or minus. Then floating point constants are normally represented as double precision quantities, right? However, the suffixes f or capital F may be used to force single precision and L और कैपिटल एल टू एक्सटेंड डबल प्रिसीजन फर्दर. ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का टाइप हो सकता है. हम उसको रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज दैट प्रिसीजन वैल्यूज, डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन वैल्यूज, राइट? दैट विल बी शो इन योर टेबल. वैलिड इनवैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, राइट? यहाँ पे उन्होंने एल लगाया है. एल इज अ सिंगल प्रिसीजन, sorry, double precision, whereas the f, capital F or small f, that will be treated as a
single precision, and small l and capital L will be represented as a double precision, right? So it will show that valid invalid numbers of the real constants, numeric constants. Then moving further, that character constants are there. Inside the character constants, single character constant and the multiple character constant, which is nothing but the string constant. So in case of a character constant, we can say that simple character constants contain a single character enclosed within a pair of a single quote. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो सिंगल कोट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर सिंगल कैरेक्टर है वैसे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम को पता रहना चाहिए कि ये क्या है, तो हमको ये बताना पड़ेगा इन अ प्रोग्राम में. सो इफ यू राइट इट डाउन लाइक अ डबल कोट, प्रिंटफ में हमने लिखा था डबल कोट, लाइक प्रिंटफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट डबल कोट, ये जो लिखा है. सो दीज आर व्हाट सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स HELLO. अगर हमको सिर्फ H लिखना है, then these double quotes are not at all used. You just have to use the single quotes in order to print a single character. Single character print करना है तो single quote, multiple characters print करने हैं तो double quotes that we have to use, right? Some of the examples are there. यहाँ पे 5 भी उन्होंने बताया है. X, then semicolon, then space, white space हम उसको बोल सकते हैं. The character constant 5 is not the same as the number 5, right? The last constant is a blank space. अब ये character constant जो 5 है, ठीक है, तो ये exactly जो 5 हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 वाला 5, वो उसके जैसा नहीं है, ठीक है. वो 5 स्पेसेस भी हो सकती है, ठीक है, कैरेक्टर के पहले की या कैरेक्टर के बाद की, वो भी हम इसके थ्रू कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के थ्रू ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से छोटे छोटे फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन व्यू और वी कैन एडिट द डेटा. जो मैं अभी ये जो वर्ड फाइल है इसमें जो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो ये एडिटिंग के लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ फंक्शंस रन हो रहे हैं. जैसे मैं ये स्पेस देता हूँ तो कर्सर आगे जाता है, ठीक है, सिंगल सिंगल स्पेस देता हूँ. अगर डायरेक्टली मैंने टैब दे दिया, यहाँ पर मैंने टैब दे दिया, तो उस हिसाब से वो मूव होगा, ठीक है. दिस टैब, Control Z. So multiple functionalities that we can perform. बट ये कैसे होती है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम रन होता है कंटिन्यूसली, सिस्टम प्रोग्राम, एंड दैट प्रोग्राम विल गिव दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक आउटपुट, राइट. नेक्स्ट, द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैव द इंटीजर वैल्यूज नोन एज अ ASCII वैल्यू. जो ASCII वैल्यू अभी हमने इसके पहले देखी, दैट ASCII वैल्यूज फॉर द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट. जैसे कि एग्जांपल दिया है उन्होंने, प्रिंट एफ %d, यहाँ पे उन्होंने %d यूज़ किया है, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, जो हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, राइट. व्हेन वी यूज़ दैट %d एंड देयर इज अ वन कैरेक्टर ए, सिंगल कैरेक्टर है इसलिए हमने सिंगल कोट में उसको डिनोट किया गया है, तब वो एक्सेस करेगा या फिर प्रिंट करेगा, और इट वुड प्रिंट द नंबर 97, द ASCII वैल्यू ऑफ अ लेटर ए, जो हमने इस पर्टिकुलर चार्ट में देखी है. कैपिटल स्मॉल ए की वैल्यू 97, कैपिटल ए की वैल्यू 65. अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए कर देते हैं तो देन डेफिनेटली द वैल्यू विल बी चेंज, दैट इज नथिंग बट द 65, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द गिवन इनपुट. जो आप इनपुट दोगे उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, राइट. सिंस each character constant represent an integer value, it is also possible to perform arithmetic operation on character constant, right. जैसे हम बोल सकते हैं b प्लस d, राइट. b की कैरेक्टर ASCII वैल्यू क्या होगी, स्मॉल b, स्मॉल d 98 और स्मॉल d 100. So 98 plus 100, 98 plus 100, that will be the 198. So that arithmetic
कैलकुलेशन दैट वी कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट, बट बहुत रेयरली यूज होता है, जनरली यूज नहीं होता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम भी है, so there is no need of this character constants arithmetic operation, right? Then string constant, which is the last part of a constant. That string constant is nothing but a sequence of a character enclosed in a double quotes. The character may be letter, number, special characters or the blank spaces which is treated as a white spaces, right? यहाँ पे उन्होंने hello दिया है, बाद में 1987, अब इसको आप डबल कोट्स में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं लेता है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट लेता है। अगर ये डबल कोट्स हटा देते हो, हटा दिया हमने डबल कोट्स, तो ये क्या हो गया, इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हम उसको बोल सकते हैं। बट अगर हम उसको डबल कोट्स देंगे तो इट विल ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। देन 5+3 ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। वेल डन, वेलकम या फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, all these are treated as a string constant. A character constant, that is example x, is not equivalent to the single character string constant x. यहाँ पे यानी जो एक x हमने यूज किया है तो वो एक सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से नहीं है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर। फर्दर अ सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग constant does not have an equivalent integer value while a character constant has a integer value. Character strings are often used in a programs to build the meaningful program. यहाँ पे उन्होंने उनका बोलना ये कि सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू। अगर हम उसको सिंगल कांस्टेंट में x अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो x को x ही लेगा, ठीक है। वो x को रिप्रेजेंट आस्की वैल्यू या फिर कोई इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसको x को बाइनरी में कन्वर्ट करके वो एज इट इज उसको लेने वाला है। बट जब आप डबल कोट्स देते हो, ठीक है, इन केस ऑफ डबल कोट्स इट विल जनरेट द इंटीजर वैल्यू लाइक 10, 11, 20, 15 जो भी इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू फिर कन्वर्ट होगी बाइनरी में। ये डबल कोट्स के लिए यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए, बट सिंगल कोट के लिए डायरेक्ट कन्वर्शन रहेगा बाइनरी, क्योंकि उसकी इंटीजर वैल्यू ही नहीं बनेगी, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा उसको बाइनरी वैल्यूज में, सो दैट सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। बट मेक श्योर दैट एनीथिंग, any data input, that input is given to the system, that will be converted into the binary form, ठीक है। अगर वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो सिस्टम के किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो उसके ऊपर प्रोसेस ही नहीं करेगी, राइट। दैट इज व्हाट अ पर्टिकुलर रोल ऑफ अ बाइनरी लैंग्वेज। देन स्विचिंग टुवर्ड्स द वेरिएबल्स। A variables is a data name that may be used to store a data value. जैसे हमने ये a देखा था, कैपिटल A, स्मॉल b, तो ये क्या स्टोर कर रहा है, वैल्यू स्टोर कर रहा है, राइट। इट स्टोर्स द वैल्यू 12, देन सम स्टोर करता है 22, देन 10 स्टोर करता है, 10 वैल्यू स्टोर होती है a में। So variable is nothing but the data name that may be used to store the data value. A variable may take a different values at a different times during the execution. जब हम constant के बारे में बात कर रहे थे, so constant is what? Fixed value. It is a fixed representation. But when we are talking about the variables, it is a variable value. That means अगर ये जो a वेरिएबल है इसकी वैल्यू मैंने अभी फिलहाल 10 ली, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से जब एग्जीक्यूट करूँगा और यूज़र को बोलूँगा कि आप वैल्यूज एंटर कीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यूज़र विल एंटर द सेम वैल्यू। उसने अगर वैल्यू एंटर कर दी 15, वैल्यू ऑफ ए इज़ 15 और वैल्यू ऑफ बी इज़ 21,
तो यहाँ पे 15 आ जाएगी, यहाँ पे ए में 15 आ जाएगी, बाद में बी में 21 आ जाएगी। तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यूज जो है 10 और 12 इनका क्या होगा? एनीवन? एनीवन हैविंग एनी आइडिया कि अगर मैंने ए की वैल्यू पहले 10 रखी थी, बाद में यूज़र से ली, फिर वो 15 हो गई, और बी की वैल्यू पहले 12 थी, अब 21 हो गई, तो जो पहले की जो वैल्यूज़ है 10 एंड 12 उसका क्या होगा? रहेगी या चली जाएगी? एग्जैक्टली दैट कंसेप्ट एग्जैक्टली दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ ओवर राइडिंग। वो ओवर राइट हो जाएंगी, ठीक है, ओवर राइटिंग यानी जो एग्जिस्टिंग है, जैसे आप करते हो ना कि एक आधी फाइल आपने ट्रांसफ़र कर दी एक आधे फोल्डर में, ठीक है, और वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट है, तो वो पूछता है आपको वुड यू लाइक टू रिप्लेस दैट फाइल। अगर आपने हाँ बोल दिया, यस बोल दिया, तो जो आप अभी फ़िलहाल जो कॉपी करने चाह रहे हो, जो प्रीवियस है उसमें का कंटेंट, और जो आपने अभी जो कॉपी करने चाह रहे हो फाइल्स, उसमें के कंटेंट से वो ओवरराइट हो जाती है, पिछला डेटा जो है वो चला जाता है यानी उसमें नहीं दिखेगा, और जो नया डेटा आप उसमें पेस्ट करना चाहते हो वो उस पर्टिकुलर फाइल में आ जाएगा रिप्लेस की वजह से। तो यहाँ पे भी वही रिप्लेसमेंट होता है। So that's why the value of this a and b is not a fixed value. That's why this a and b is called as a variable. अब ये दो बदले तो उनका सम तो डेफिनेटली बदलेगा ही ना, सम थोड़ी ना कांस्टेंट है, ठीक है। So that will be the change. Some of the examples of the variables are average है, sum है, height है, total है, then counter, class, strength। यहाँ पे ये पैटर्न देखिए आप, मैंने कैसे स्टोर किया है। काउंटर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर स्ट्रेंथ, अगर वो अंडरस्कोर निकाल दे तो वो पूरा काउंटर क्लास स्ट्रेंथ वो पढ़ते में थोड़ी दिक्कत जाती है। सो यू कैन यूज द अंडरस्कोर फॉर अ लार्ज वेरिएबल, ठीक है। अगर हमको परसेंटेज ऑफ सेक्शन ए स्टूडेंट और उसमें भी बॉयज़ के निकालने, तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अंडरस्कोर के हेल्प से हम वहाँ पे वो लिख सकते हैं। अगर पूरा एज इट इज़ लिख दिया तो वो तो कैरेक्टर सब मिक्स हो जाएंगे यानी पहचान में नहीं आएंगे, ठीक। दैट कैन बी मेड पॉसिबल। देन वेरिएबल्स वेरिएबल नेम्स में consist of a letters, digits and underscores character, and it has to follow all the rules that are applicable to an identifier। वहाँ पे हमने लिखा था नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो जो भी रूल्स वहाँ पे हमने डिफाइन किए थे आइडेंटिफायर के, दैट सेम रूल्स आर अप्लीकेबल फॉर द वेरिएबल्स ऑल्सो। फर्दर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल नेम्स एंड देयर करेक्टनेस आर गिवन। फर्स्ट अंडरस्कोर टैग विच इज़ अ वैलिड वन बिकॉज अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं। बाद में लिखा आपने कैरेक्टर, कैरेक्टर को क्या लिया आपने एज ए वेरिएबल, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैरेक्टर इज अ कीवर्ड, क्योंकि वो डेटा टाइप है, उसका अलग सिग्निफिकेंस है। देन प्राइस डॉलर, डॉलर साइन आ गया, डॉलर का भी अलग एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो भी यूज़ नहीं होगा, इलीगल है। देन ग्रुप वन, ग्रुप वन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रुप और वन ये जो दो वर्ड्स है, दो वर्ड के बीच में आगे वाइट स्पेस यानी स्पेस है, ब्लैंक है, ब्लैंक इज नॉट ट्रीटेड और परमिटेड बिकॉज उसी को फिल करते हैं हम अंडरस्कोर से इन केस ऑफ वेरिएबल। देन एवरेज नंबर दैट इज वैलिड, इंटीजर अंडरस्कोर टाइप, अगर सिंपल इंटीजर अगर लिखते थे तो वो हो गया कीवर्ड, और इंटीजर अंडरस्कोर टाइप अगर लिखते हैं तो वो बदल गया, वो एज अ वेरिएबल यूज होगा, ठीक है। तो कीवर्ड मे बी द पार्ट ऑफ अ नेम, यानी वो नेम बन सकता है, तो इट इज अ वैलिड वेरिएबल, राइट। Then the most important part that we will deal every time in a C language, that is nothing but the data types, ठीक। इसका सिर्फ ओवरव्यू करेंगे हम क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इजीली 4-5 मिनट में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ओवरव्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट,
सी लैंग्वेज इज अ रिच इन इट्स डेटा टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप्स है उसके पास। तो अगर सी लैंग्वेज के पास डेटा टाइप्स बहुत है, उसका एक एडवांटेज ये है कि अलग अलग वेराइटी ऑफ डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई अगर मिक्स डेटा टाइप अगर है, जैसे कैरेक्टर भी है, कांस्टेंट भी है, स्ट्रिंग भी है, अब क्या करना फिर, इन्हें तीनों एक साथ यूज़ करने हैं। जैसे हमारा एड्रेस रहता है जिसमें हम A/2 ऐसे लिखते हैं ना बहुत बार एड्रेस में, कैपिटल A/2। ठीक है, तो ए विंग सेकंड ब्लॉक। ठीक, अब ये A/2 अगर हम लिखेंगे तो ये तो कैरेक्टर भी नहीं है, A/2 है ना, डिवाइड थोड़ी ना होता है, ए से कोई 2 डिवाइड करता है क्या, नहीं हो नहीं सकता है। तो कंप्यूटर को जब आप ये डेटा देते हो, ठीक है, तो इट गेट्स मे बी कंफ्यूज, बट उसका डेटा टाइप है वैर क्या, जिसमें आप कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो। दैट्स वाई सी इज treated as a rich in data types. The variety of data types are available, and that will allow the programmer to select their appropriate type. जैसे आपका डेटा होगा, जो आप डेटा डील करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर डेटा के साथ डील करना चाहते हो, फॉर दैट द वन डेटा टाइप वी कैन यूज to need to the needs of the application as well as the machine, right? So C supports the three classes of a data types. That was first one is primary or fundamental data types, second one is derived data types, and third one is user defined data types. It is not necessary like that कि अगर सिस्टम ने कुछ डेटा टाइप्स बना के दिए हैं सी लैंग्वेज में, सी के सिस्टम लाइब्रेरी में, तो वही के वही यूज़ करने। नो, we can design combination of a fundamental data types and some system data types, इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन लिया तो डिराइव्ड डेटा टाइप हो जाएगा, और अगर यूज़र डिफाइन किया है, यूज़र डिफाइन किया है तो दैट विल कम्प्लीटली द अगर हम हमारे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं जो सिस्टम में नहीं है, दैट इज़ नथिंग बट अ कम्प्लीटली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? So rest of the discussion about the data type we will see in the next lecture.